Okay, so you can see this is figure 4.2. We are discussing sodium transport processes, how sodium is absorbed in the first half of the proximal tubule. So यहाँ diagram में क्या है? You can see two diagrams here, part A and part B. Let me just go up. So again, partitions वही है. There is a tubular fluid, then there are epithelial cells of the proximal convoluted tubule, then there is tissue fluid and blood vessels as discussed previously. Apical membrane, basolateral membrane. Now you are very familiar कि कौन से structures हैं, basolateral membrane कौन सा, apical membrane कौन सा. Look at the first cell. On the first cell, you can see on the basolateral membrane there is a sodium potassium pump. This sodium potassium pump will allow movement of sodium ions in which direction? Out of the cell. Sodium ions are constantly going out. When they are going out, क्या होगा? A low sodium concentration will be established inside the cell. This is what I am explaining. Sodium potassium pump में sodium cell से बाहर गया. A low sodium concentration is established inside the cell. Now, parallel क्या होगा? उसके साथ साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास cell में there is carbon dioxide and water inside the cell. It combines together, or carbonic anhydrase. Ca means carbonic anhydrase enzyme. It splits it into HCO3 minus and H plus ion. अब क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्लास में. H plus is the acidic marker and bicarb is the alkaline marker of your body fluids. So H plus ion is exchanged for sodium ion through a transport protein called NHE3 on the apical surface. Apical surface पे एक protein है NHE3. It is an antiporter. It exchanges sodium for H plus ion. As a result, filtrate में H plus ion enter हो जाएगा tubular secretion के through, और सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब हो गया किधर? into the epithelial cell. अब वो सोडियम आयन epithelial cell के अंदर है. epithelial cell के अंदर बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है क्योंकि अभी बना था. So on the basolateral membrane there is another protein called NBC1. This allow bicarb ion, which is HCO3 minus ion, and the sodium ions to both move in the same direction. The process is symport mechanism. सिम्पोर्ट के थ्रू बाइकार्ब भी चला गया, सोडियम भी चला गया, सेल से बाहर चले गए किधर? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में. इसका मतलब सोडियम आयन, बाइकार्ब आयन कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे. सो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में दिस इज हाउ दिस इज अकरिंग. नाउ कम टू सेल बी जो नीचे शो किया हुआ है, वहां पे भी यही वाली स्टोरी है. इट्स जस्ट द डिफरेंस इज just slightly. Again, there is a sodium potassium pump on the basolateral membrane. It pushes out sodium ion out of the cell. As a result, unstable है. So, मेरे पास signals पूरे आ रहे हैं. Okay, refreshed it. Okay, so there is a sodium potassium pump present on the basolateral membrane here. It pushes out sodium ions outside the cell. As a result, epithelial cell will have a low sodium concentration. Now, on the apical surface, there is a transport protein called SGLT2. What is SGLT2? It is a co-transporter of sodium and glucose. Sodium and glucose दोनों cell के अंदर आ जाते हैं इस transport protein से. Once sodium and glucose have entered, यही sodium किधर चला जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सेल से बाहर चला जाएगा, और यही ग्लूकोज एपिकल मेम्ब्रेन से आया था. नाउ फ्रॉम द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड GLUT2, GLUT2. इस GLUT2 के थ्रू ग्लूकोज विल एंटर द टिश्यू स्पेसेस. GLUT2 क्या है? GLUT2 एक यूनिपोर्ट है. SGLT2 क्या है? एक सिम्पोर्ट है. NHE3, NBC1 क्या है? These are your antiporters. So तुम्हारे पास antiport का भी एग्जाम्पल हो गया NHE3. Let me come back again. NHE3 क्या है? Antiport का एग्जाम्पल है. NBC1, SGLT2, they both are the examples of symport mechanism. And lastly, GLUT2 is an example of uniport mechanism. तो ये तीनों तुम्हारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं तुम्हें इस डायग्राम में, हाउ दे आर प्रेजेंट. मैंने पहले NBC1 को
एंटीपोर्ट बोल दिया था, तो करेक्ट कर लेना है, ये एंटीपोर्ट नहीं है, ये सिम्पोर्ट है। सेम सेम डायरेक्शन में टू सब्सटेंसेस आर गोइंग। अब इस सारी बात के साथ मैंने तुम लोगों को एक चीज अभी हिंट नहीं की, और वो क्या है, वो है पोटेशियम का पैसिव डिफ्यूजन। बेसल में जो बेसोलेटर मेम्ब्रेन है उसमें तुम देख सकते हो कि पोटेशियम आयंस आर आल्सो गोइंग आउट। सो पोटेशियम आयंस आल्सो मूव आउट, they move out from the basolateral membrane and they enter the tissue spaces as well. If we come to figure 4.3, तो figure 4.3 में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, x axis पे परसेंट डिस्टेंस along the proximal tubule। 0 मीन्स तुम proximal tubule के बिल्कुल शुरू में हो, then 20 मीन्स थोड़ा दूर गए, 40 मीन्स थोड़ा और दूर गए, and 80 100 मीन्स proximal tubule के बिल्कुल सिरे पे पहुंच गए हो जहां पे loop of Henle स्टार्ट हो जाएगा। y axis पे तुम्हें क्या शो हो रहा है, y axis पे तुम्हें this is showing you the tubular fluid as a function of length along the proximal tubule, कि कैसे वो उसकी concentration change हो रही है as you are going ahead into the proximal tubule। तो तुम देखो जैसे जैसे तुम proximal tubule में आगे जाते हो, अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सबकी कंसंट्रेशन proximal tubule में क्या होनी शुरू हो जाती है, ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड। सोडियम की ऑस्मोलैलिटी बराबर रहती है, क्लोराइड keeps increasing slightly and then it becomes stable. This just shows you a general trend जो तुम्हें यहाँ पे नजर आता है जब तुम proximal tubule में reabsorption करवाते हुए आगे जाते हो। Okay, now this diagram here shows you कि second half of proximal tubule में क्या हो रहा है, what's happening in the second half of the proximal tubule। Again, इसमें तुमने क्या देखना है, इसमें भी हमने वही चीजें देखनी है, partitioning। What's happening here? Let me annotate this. Again, we'll go with the same flow. This is your sodium potassium pump. You can see the sodium potassium pump. It allows sodium ion to go out of the cell. As a result, inside the cell there will be low sodium concentration. Always you will start the story from this point. Sodium potassium pump on the basolateral membrane pushes out sodium ions. There is a low sodium concentration established inside the epithelial cell. क्या होगा उससे? उसी से ड्राइविंग फोर्स बनेगी। Now, on the apical surface, there is an antiporter, NHE3. Again, क्या कर रहा है? सोडियम को अंदर भेज रहा है into the epithelial cell, H plus ions को बाहर बुलाएगा। So H plus ions comes out. There is an other transport protein, another antiporter on the apical surface, CFEX. It pulls in chloride ion and it takes out a base from the cell. Epithelial cell के अंदर base होगी, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगी, हाइड्रोजन NHE3 के साथ बाहर जाएगा और बेस CFEX के साथ बाहर जाएगी। बाहर जब चले जाएंगे, when they go out, H and base they will combine together. H और base क्या हो जाएंगे, वो दोबारा combine हो जाएंगे, और combine होने के बाद they will enter the cell once again. So this is like a cyclic flow. You can see chloride and sodium both are entering into the cell, and H and base क्या कर रहा है, इस cycling में help कर रहा है। Whatever sodium entered in this process, वो सोडियम किधर चला जाएगा, it will cross the entire pathway, वो सारे यहाँ से क्रॉस करेगा और क्रॉस करते करते किधर पहुंच जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप तक, वहां से टिश्यू स्पेस में चला जाएगा। ये क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन सारे यहाँ से निकला और इवेंचुअली निकलते निकलते किधर चला गया, KCC तक चला गया। व्हाट इज KCC? KCC तुम्हारे पास एक ऐसा एंटीपोर्टर है, सॉरी एक ऐसा सिम्पोर्टर है, ये कहीं से कंस्ट्रक्शन की आवाज आनी शुरू हो गई है, KCC, ये क्या है, दिस इज अ सिम्पोर्टर। ये सिम्पोर्टर क्या करेगा, it will allow two ions, potassium and chloride, to go out into the tissue space. As a result क्या हुआ, पोटेशियम भी सेल के अंदर से रीअब्सॉर्ब हो गया नेफ्रॉन में, सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हो गया, क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हो गया। प्लस इस डायग्राम में तुम्हें एक और चीज नजर आ रही है, which is the use of tight junction. You can see सोडियम क्लोराइड टाइट जंक्शन से रीअब्सॉर्ब होकर टिश्यू फ्लूइड्स के रीजन में आ रहा है। Okay, come to this table 4.4. This shows sodium chloride transport along the nephron. The segments are mentioned: proximal tubule, loop of Henle, distal tubule, late distal tubule, and collecting duct. How much of each of these sodium chlorides are absorbed throughout the nephronal parts?
यही तुम्हें यहाँ पे चीज शो हो रही है. So you can see percentage of filtered sodium chloride which is reabsorbed. 67% is reabsorbed in PCT, 25% in loop of Henle, approximately 5 and 3% in distal and late distal. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में या जब क्लास में हो रही थी यूनिवर्सिटी में कि 67% पीसीटी में हो जाता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो चुका, रिमेनिंग रीअब्जॉर्प्शन बाकी आगे होगा. मैकेनिज्म ऑफ सोडियम एंट्री अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन, सोडियम एज ट्रांसपोर्टर्स, ये सारी डिस्क्रिप्शन तुम्हें यहाँ पे मेंशन की हुई है. दिस टेबल 4.4 इज अ वेरी कोहेरेंट टेबल जिसमें तुम्हें सारे जो भी हमने अभी बात की है ना सबकी समरी मिल जाती है. मेजर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, अभी इन सबको सिर्फ तुम लोग देख लोगे, नाम याद कर लो. अभी आगे हम हार्मोन्स को जब डिस्कस कर रहे होंगे देयर विल बी वन क्लास जिसमें हम इन सारे हार्मोन्स को गो थ्रू करेंगे. सो वी डिस्कस ऑल दीस हार्मोन्स इन दैट पार्ट. नहीं मुझे तुम्हारी आवाज देखो -5 नहीं लिखा हुआ, अप्रॉक्सीमेट 5 लिखा हुआ है ये. ओके सर, अप्रॉक्सीमेटली 5. तुम लोगों को नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन. तो प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही होती है आपके पास नेफ्रॉन में? ये हो रही होती है मेनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स क्रॉस करके ग्लोमेरुलस ही, हमें ऑलरेडी पता है कि फिल्ट्रेशन बैरियर है वहाँ पे, ठीक है, होती ही कम वहाँ से फिल्टर आउट है. कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीग्राम पर लीटर. बट ये सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि हमारा GFR बहुत है. हमारा GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर पर डे. 180 लीटर बहुत होता है. तुम 1 लीटर देखो कितना होता है, 1 लीटर तुम्हें अंदाजा होगा. 180 लीटर खाली इमेजिन करो, 1 लीटर 180 बॉटल तुम्हारे सामने रखी हुई है. इतना GFR है तुम्हारे किडनीज का एक दिन का, 180 लीटर पर डे. तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीग्राम हर लीटर के अंदर तुम्हारे पास प्रोटीन फिल्टर आउट हो रहा है. तो अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रोटीन तुम्हारे फिल्टर आउट हो जाता है? 7200 मिलीग्राम पर डे या 7.2 ग्राम पर डे. ये अच्छा खासा प्रोटीन है जो फिल्टर आउट हो रहा है. 1 लीटर में तो सिर्फ 40 मिलीग्राम है, मगर ओवरऑल GFR इतना ज्यादा है कि 7.2 ग्राम पर डे प्रोटीन आपका क्या हो जाता है? इट गोज आउट फ्रॉम योर फिल्टर, इट कम्स आउट इनटू द फिल्टर. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है. यही बात हमने डिस्कस करनी है कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, क्योंकि इसकी रीअब्जॉर्प्शन करानी जरूरी है वरना आपकी प्रोटीन लॉसेस हो जाएंगे. दिस इज हाउ एट सेलुलर लेवल तुम्हारे पास प्रोटीन्स आर रीअब्सॉर्ब्ड. मल्टी लिगेंड एंडोसिटिक रिसेप्टर्स होते हैं. देयर आर प्रोटीन्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स कॉल्ड मिगैलिन एंड ट्यूबुलिन. ये प्रोटीन्स हैं जो एंडोसाइटोसिस करवाती हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में. मिगैलिन एंड ट्यूबुलिन क्या है? मिगैलिन एंड ट्यूबुलिन, these are the surface proteins present on the epithelial cells apical surface in the proximal tubule. They allow endocytosis, receptor mediated endocytosis. receptor mediated endocytosis तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये अपने पास पिछले साल सेकेंड ईयर में. तो receptor mediated endocytosis मिगैलिन एंड ट्यूबुलिन करवाते हैं, प्रोटीन रीअब्सॉर्ब हो जाती है. अगर प्रोटीन रीअब्सॉर्ब नहीं होती तो क्या होता तुम्हारे पास फिर प्रोटीन यूरिया हो जाता. यूरिन में प्रोटीन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट्स प्रोटीन यूरिया. ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है. बट देयर आर ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन्स व्हिच मे बी प्रेजेंट इन यूरिन. वो ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन क्या है वो तुम्हें यहाँ पे बताया हुआ है. ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन किसकी? टैम हॉर्सफॉल. टैम हॉर्सफॉल क्या है? इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्यूबुलर फ्लूइड में ऐड होती है. कहाँ पे? वो ऐड ही होती है नेफ्रॉन में आगे जाके. कहाँ पे? ascending loop of Henle के पास. Thick ascending limb of loop of Henle, it produces a glycoprotein called TAM-Horsfall protein. This TAM-Horsfall protein, it enters into the filtrate. अब क्योंकि प्रोटीन की रीअब्जॉर्प्शन हुई ही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे थी, अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट आगे गुजर गया है और उसके बाद नई प्रोटीन फिल्ट्रेट में ऐड हो गई है, उसको रीअब्सॉर्ब कराने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा. तो टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ट्रेसेस तुम्हारे पास यूरिन में आ सकते हैं एंड दे आर नॉट एबनॉर्मल. दिस इज अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ योर यूरिन. टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन या टैम हॉर्सफॉल ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ योर यूरिन. इसके जो यूरिन में प्रोटीन के ट्रेसेस आ जाते हैं वो इसी की वजह से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन
बनती ही किधर है, वो बनती ही उधर है नेफ्रॉन में जहाँ थिक असेंडिंग लिंक वो उसको प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट क्योंकि प्रोटीन की जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो हुई ही कहाँ पे थी, वो हुई थी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जब वो रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी, अपस्ट्रीम थी, अपस्ट्रीम मींस लूप ऑफ हेलिस शुरू होने से पहले ही रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी थी। वो कौन से प्रोटीन रीअब्जॉर्ब हुआ था, वो रीअब्जॉर्ब हुआ था जो फिल्ट्रेट में 7.2 ग्राम जितना पर डे आता है। टैम हॉर्सफॉल बना ही उस वक्त जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को पास कर रहा था, तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड दिस इज नॉर्मल। I hope point is clear. Okay, aquaporins. What are aquaporins? Aquaporins are protein channels in the membrane of your epithelial cells of nephron that allow water to be transported across the cell membrane. Aquaporins को हम abbreviate करते हैं AQPs के नाम से, इस letters से. Aquaporins basically, according to the edition of the book that we are following, this is the 5th edition. Aquaporins कितने हैं? 14 aquaporins were identified by the time this book was published. Obviously currently इससे ज़्यादा होंगे, but क्योंकि इस बुक से हम कर रहे हैं तो इसमें बेसिक आइडिया तुम्हें ये रखना है कि कितने aquaporins हैं. It's not just one aquaporin. आइडिया तुम्हारे पास ये होना चाहिए. आज 14 aquaporin नहीं, आज 14 से बहुत ज़्यादा होंगे. Anyhow, so aquaporin family is divided broadly into 2 categories. किनमें एक ग्रुप्स हैं जिनमें वाटर परमिएबिलिटी है खाली, दे आर जस्ट परमिएबल टू वाटर, दे आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स. इसके अंदर कौन कौन से एक्वापोरिन आ जाते हैं? एक्वापोरिन 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 and 12. These are all aquaporins, the first group which allows just water to move. The other group is called as aquaglyceroporins. It is permeable to water, obviously since it's aquaporin, but it is permeable to glycerol as well. इसमें aquaporin 3, 5, 7, 9, 10 आ जाते हैं. ठीक है, आगे तुम्हें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सारे aquaporins तुम्हारे पास एपिकल मेम्ब्रेन पे नहीं होते और सारे बेसल मेम्ब्रेन पे भी नहीं होते. So some of them are present on the basolateral membrane, some are present on the apical membrane, and aquaporins are not restricted to nephrons. Aquaporins are present in various parts of the body. सिर्फ नेफ्रॉन में प्रेजेंट नहीं है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तुम्हारी स्किन है, तुम्हारे ग्लैंड्स हैं, तुम्हारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स, स्पेशली ब्रेन है जहाँ पे तुम्हारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बन रहा है, तुम्हारी आईज हैं जहाँ तुम्हारे पास एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बन रहा है. ये सब वो जगह हैं जहाँ पे एक्वापोरिन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Okay. Then we come to organic anions and organic cations. Proximal tubule में organic anions और organic cations की भी secretion हो रही होती है. Organic anions पहले देख लो. Endogenous का मतलब होता है जो सेल के अंदर बन रहा है, और exogenous होता है जो सेल के बाहर है. जैसे आप बाहर से जो चीज डाल रहे हो, जैसे ड्रग्स हैं, these are exogenous. Endogenous वो होगा जो सेल के अंदर बन रहा होता है. तो ऑर्गेनिक एनायंस secreted by proximal tubule. एंडोजीनस एनायंस कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बाइल सॉल्ट्स हैं, ऑक्सलेट है, यूरेट है, विटामिन्स एस्कॉर्बेट एंड फोलेट है. These are endogenous anions. These endogenous anions means that they are produced inside your cell. Then drugs, for example, amoxicillin, furosemide, penicillin, losartan, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs जिसको बोलते हैं, ये सारे क्या हैं? These are organic examples. These are the examples of organic anions जो कि exogenous हैं, बॉडी के बाहर से बॉडी में जाते हैं. Come to cations. Cations में endogenous तुम्हें नीचे दिए हुए हैं. क्रिएटिनिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एंडोजीनस कैटायंस हैं, ऑर्गेनिक. और ड्रग्स सच एज एट्रोपिन, सिमिटिडीन, मॉर्फिन, प्रोकेनेमाइड, these are the examples of organic cations. You don't need to learn all these names, just learn a few names to as an examples कि तुम्हें पता हो कि organic anions की क्लासिफिकेशन में एंडोजीनस में कौन से आ सकते हैं, just one or two examples, और cations में कौन हो सकते हैं एंडोजीनस. Similarly exogenous में cation anion में कौन से होते हैं. Why are we discussing this? Because we have to follow how organic anions and organic cations are secreted by the proximal tubule. तो ये तुम्हें डायग्राम में नजर आ रहा है for organic anions. Now what's happening here in the organic anions? What's happening here in the organic ions? You can see इस organic anion में you can see on the apical surface and the basolateral surface. वही वाली बात है. Basolateral surface पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है? You can see on the basolateral surface there is sodium potassium pump.
सोडियम सेल से बाहर जाएगा, सोडियम कंसंट्रेशन एपिथेलियल सेल में कम हो जाएगी। नाउ उसी के नीचे बेसोलेटरल सरफेस पे तुम्हें नजर आ रहा है NADC3। व्हाट इज NADC3? दिस इज अ सिंपल, ये अल्फा केजी और सोडियम को सेल के अंदर बुलाएगा। व्हाट इज अल्फा केजी? अल्फा केजी इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। व्हाट इज अल्फा केजी? अल्फा केजी इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा केजी नाम याद रखो, ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये रीसाइक्लिंग में हेल्प करता है तुम्हारे आयंस की अक्रॉस द सेल। अल्फा केजी और सोडियम सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे एंड व्हेन दे एंटर इनसाइड द सेल्स क्या होगा तुम्हारे पास? ये जो अल्फा केजी है कुछ एपिकल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, ये जो तुम्हारे O84 दिया हुआ है, ये O84 क्या करेगा? ये ऑर्गेनिक एनायन को सेल के अंदर बुला लेगा और अल्फा केजी को बाहर भेज देगा। और दूसरा प्रोटीन MRP24BRCP, ये ऑर्गेनिक एनायन को यूनिपोर्ट के थ्रू बाहर भेजता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ATP को ब्रेक कर रहा होगा। यहाँ तुम्हें एक और एपिकल बेसोलेटरल सरफेस पे OAT123 दिए हुए हैं। 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, ये ऑर्गेनिक एनायन को एपिथेलियल सेल के अंदर बुलाते हैं, अल्फा केजी को बाहर भेजते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ हाउ द organic anions and are moving across your epithelial cells. Lastly, I'll just end the class. Organic cations पे देख लो। Organic cations में भी वही वाली बात है। Organic cations में what do you see here? Organic cations में तुम्हें नजर आ रहा है वही बात है, सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे ये सोडियम की कंसंट्रेशन को लो रखेगा। OCT2 एक यूनिपोर्ट है, उससे ऑर्गेनिक कैटायन एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाएगा। ऑर्गेनिक कैटायन इस mate MATE is a protein say which is present on the apical surface, उससे it will be exchanged for H plus ion। H plus ion सेल के अंदर आ गया, ऑर्गेनिक कैटायन बाहर चला गया। इसी तरह there is an other protein called MDR1, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ऑर्गेनिक कैटायन को सेल के बाहर भेज देगा। So this is how basically organic cations and organic anions they are exchanged or they are secreted into the filtrate out of your बॉडी। तभी ये होता है जो ड्रग्स तुम लेते हो, जो भी मेडिसिन तुम ले रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने पेनिसिलिन ली, फ्यूरिसिमाइड ली, तुमने लोसार्टन ली, तुमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ली, तो उनके प्रोडक्ट्स इवेंचुअली एज आयंस दे आर पासिंग आउट फ्रॉम यूरिन फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरिन। तो जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स इसी तरह वो लिवर में जाके क्रॉस होते हैं, exchange होते हैं and break down होते हैं and then they pass out from the kidneys into the urine। ठीक है, that's it, I'll end the class here।